Hi guys, welcome back to my YouTube channel DU Scholars. So today we stand at the next video of our unit 4, that is sixth video, where we'll be covering about more of the measures of central tendency. Recently in our video, I think it was the fourth video, where we covered about central tendency, where we covered the topics of central tendency that included mean, median, mode and missing values wala part. So today, till now we have done the topics that are assignment of variables, constants, data structures, maybe data vectors, matrices, list and data frames. Then we move towards central tendency that I talked about abhi. Then we move towards dispersion, and in the recent last video we covered about conditional statements and the loops part. Now we'll be moving towards central measures of central tendency. Measures of central tendency that include are majorly the measures include weighted mean and geometric mean and the harmonic mean that we all know क्या होता है, since we have already started business statistics in our previous semesters. So talking about the measures of central tendency में firstly weighted mean. So weighted mean हम कैसे calculate करते हैं in R. सबसे पहले तो let me create a vector called values. कोई भी random value, give concatenate and give the random values as say 13, 17, 14, 16, 19, right? Press Control Enter to create the vector. Then we'll assign the weights of this so that weighted mean can be computed. We give the weights as 2, 3, 4, 5, 2. ठीक है? Press Control Enter. Now since we have vector as values and the data as values and the weights we have given these. Now how we'll create, we'll find out the weighted mean. Firstly, we create the vector name as weighted am, ताकि we are easy to print that vector, and then we give the command as weighted dot mean. You can see right here यहाँ पर, and it says x and w. X means the data you want to work with, and the w means weights. So data we have a vector as values and weights as weights only, and just press Control Enter to calculate the weighted mean, and we'll print weighted am to give our output in console. Now you can see that उसने output दे दिया 15.6875. ठीक है? ऐसे ही create, comment down the answer of weighted mean of these numbers 25, 98 and 72, and also write the commands that you used and how you printed that. ठीक है? Now towards the next topic of geometric mean. Geometric mean में we create the data, give the concatenate function, यही वाला ले लो, and ज़रूरत भी नहीं थी, वैसे आप वैल्यू से भी कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, कर सकते हो. एंड ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने के लिए ना वी इंस्टॉल अ पैकेज नेम्ड एज साइक. सो उससे ही ज्योमेट्रिक मीन निकल पाएगा. इफ़ यू नो राइट ऐसे ही वेटेड मीन की तरह ज्योमेट्रिक मीन, तो वो एरर दे देगा बिकॉज उसका पैकेज ही इंस्टॉल नहीं है. तो सबसे पहले भी इंस्टॉल द पैकेज कॉल्ड, तो इंस्टॉल पैकेज का इंस्टॉल डॉट पैकेजेस होता है कमांड. द पैकेज नेम इज साइक, PSYCH, and installation के लिए we use the quotation mark, but for calling the package from the library we don't use quotation marks, right? It is installing, अभी install हुआ नहीं है, let it install. It is installing, yeah, successfully unpacked, you can see यहाँ पर. And now we call
using the command library and write psych, press Control Enter. Now it is called, you can check it from here. psych पे टिक लग चुका है, मतलब कॉल हो चुका है. इसमें we now we can use the geometric mean. Give the command geo mean ताकि हम geometric mean निकाल सकें. ज्योमेट्रिक मीन में सेम लिख देंगे ऊपर. हमने अभी ये वाला डेटा का निकालना है, ये का निकालो, वैल्यूज़ का निकालना, वैल्यूज़ का निकालो, कोई दिक्कत नहीं है. अब ये डेटा बना ही लिया तो इसका निकाल लेते हैं डेटा डॉट. नाउ क्योंकि हमने जैसे एवरेज में मीन जो सिंपल जो हमने कैलकुलेट किया था उसमें वी यूज़ द फंक्शन ना NA.rm ताकि हमारे मिसिंग वैल्यूज़ वो कैलकुलेट ना करें. वैसे आप वेटेड में भी कर सकते हो, क्योंकि वैसे वेट्स तो हम दे ही रहे हैं तो उसमें बेसिंग होने का कोई चांस ही नहीं है. तो ज्योमेट्रिक में यू कैन गिव NA.rm इजीली इज इक्वल टू ट्रू एंड प्रेस कंट्रोल एंटर एंड देन प्रिंट जियो मीन, जो भी आपके वेक्टर का नाम है आपने जो भी रखा होगा, प्रेस कंट्रोल एंटर. ओहो मी कर दिया मैंने, एन आया ही नहीं वहाँ पर, कोई बात नहीं. नाउ ज्योमेट्रिक मीन का आंसर आ चुका है 15.65593 जो भी है, ठीक है. नाउ टुवर्ड्स द हार्मोनिक मीन. हार्मोनिक मीन के लिए भी यूज़ दिस डेटा ओनली एंड HM रख लेते हैं इसका नेम हम. एंड हार्मोनिक ये अब डायरेक्ट आएगा क्योंकि आपने पैकेज इंस्टॉल कर लिया. गिव द डेटा का रेफरेंस, डेटा हमारा डेटा ही है, एंड राइट NA.rm इज इक्वल टू ट्रू, कंट्रोल एंटर, प्रिंट HM. नाउ इट्स द आंसर ऑफ हार्मोनिक मीन, ठीक है. तो ये तीनों हो गए. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी हैव टू स्टडी इज फाइंडिंग आउट द क्वार्टाइल्स. क्वार्टाइल्स कैसे निकालते हैं? क्वार्टाइल्स तो आपको पता है ना क्या होते हैं. क्वार्टाइल्स जब हम डेटा को 4 उसमें डिवाइड कर देते हैं तो ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वार्टाइल, राइट. सो उसकी परसेंटेज भी नो की 0.5 होती है. 25th क्वार्टाइल के लिए 25% होती है. नेक्स्ट अगर हम 50% मीन की बात करें तो दैट इज़ 50% ऑफ द डेटा एंड उसको ही मीन कहते हैं. एंड सेकेंड क्वार्टाइल भी वही होता है. देन द थर्ड क्वार्टाइल इज आर एट 75% प्रोबेबिलिटी एंड दैट वी कॉल एज थर्ड क्वार्टाइल, राइट. तो क्वार्टाइल कैलकुलेट करने के लिए वी यूज़ द फंक्शन क्वांटाइल in R for calculating the quartiles of any data set, right. So let's create a function, the vector name as quartile and function as quantile. Now it's saying x, आपका डेटा क्या है? डेटा तो डेटा ही है हमारा. then we use the probs as probability. probability अगर हमने फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है तो हम 25% इसको पॉइंट्स में लिखते हैं. तो मैं सारे ही एक बार में निकाल देती हूँ. तो वी यूज़ द कंकैटिनेट फंक्शन. तो 0.25 0.50 एंड 75% होता है थर्ड वाला, तो 0.75. प्रेस कंट्रोल एंटर एंड देन प्रिंट क्वार्टाइल, कंट्रोल एंटर. नाउ यू कैन सी उसने परसेंटेज में लिख दिया. 25% का ये है, 50 का ये है, 75 का ये है. ऐसे ही यू कैन इवन क्वांटाइल फंक्शन से आप कोई भी निकाल सकते हो. या तो मैंने क्वार्टाइल निकालने थे इसलिए 25% कोई भी परसेंटेज निकाल सकते हो. फॉर एग्जांपल परसेंटाइल निकालना, परसेंटाइल के लिए यूज़ सेम द क्वांटाइल फंक्शन ओनली, बट सिर्फ परसेंटेजेस चेंज हो जाएगी, मतलब प्रोबेबिलिटीज़ की परसेंटेजेस चेंज हो जाएगी. जो हो जाएगी दो निकाल लेते हैं. 10% पे निकाल लेते हैं और एक 90% पे निकाल लेते हैं. देन परसेंटाइल को प्रिंट कर लो एंड हेयर्स योर 10% एंड 90% का ऑफ दिस डेटा. ये वाला डेटा पे ही वर्क कर रहे हैं हम, ठीक है. सो हमारा ये टॉपिक भी हो गया. ना नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू कवर इज़ द मूविंग एवरेजेस. I hope the speed is okay with you and you are getting जितने भी concept I have taught you till now. And if you have any doubt, please comment down. And if you are feeling like yes I am understanding, then also drop a comment कि हाँ that we are understanding, so that I also get the feedback कि हाँ everything is going, we are at the same page, right. So moving averages पे work करते हैं. Now moving averages के लिए we have to install a new package that is TTR.
So install packages की command we give and put the quotation mark as TTR, all capital में लिखना. Press Ctrl Enter, then the package will be installed in your systems. Yeah, successfully unpacked. यहाँ पर आ जाएंगे सारे TTR is successfully unpacked. ठीक है. उसके बाद we call it from the library as TTR. It is called now. अभी दूसरा डेटा सेट ले लेते हैं बिकॉज मूविंग एवरेजेस के लिए वी नीड थोड़ा सा एटलीस्ट 9 to 10 frequencies का डेटा. सो वी क्रिएट अ डेटा सेट as random variables as 25, 24, 82, 65, 96, 36. कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 10 हो गए ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है. डेटा, इसको डेटा 1 दे देते हैं सो दैट हमारा ऊपर वाला चेंज ना हो. प्रेस कंट्रोल एंटर. डेटा 1 हमारा बन चुका है. नाउ सबसे पहले मूविंग एवरेजेस में वी विल डू सिंपल मूविंग एवरेजेस. क्रिएट अ वेक्टर एज सिंपल MA and just put the operation and then SMA in all caps. give the x as data का रेफरेंस डेटा 1 है हमारा and n इज इक्वल टू मतलब कितने साल का मूविंग एवरेज निकालना. फॉर एग्जाम्पल इफ आई कैलकुलेटिंग 3 ईयर मूविंग एवरेजेस. द मूविंग एवरेजेस का ज़्यादा कॉन्सेप्ट आई हैव टोल्ड यू यू नो टॉट यू इन पहले वाली वीडियोज़ वेयर आई डिड एक्सेल ऑल्सो. एक्सेल पे भी मूविंग एवरेजेस आई टॉट यू. तो उस टाइम हमने डेटा सेट पे वर्क किया था. इन एक्सेल में कैसे कैलकुलेट किया था वो भी आप देख लेना. अभी आर में वी जस्ट डायरेक्टली गिव द रेफरेंस ऑफ द डेटा जो सा आपने ऊपर बनाया एंड जस्ट पुट दी कौन से कितने ईयर का मूविंग एवरेज निकालना है. फॉर एग्जांपल 3 ईयर का निकालना तो वी पुट n इज इक्वल टू 3 एंड प्रेस कंट्रोल एंटर एंड जस्ट प्रिंट सिंपल MA योर फंक्शन दैट इज यू नो ये वाला, ताकि आपको आंसर कंसोल में दिख जाए. नाउ यू कैन सी उसने पहले पे नॉट एप्लीकेबल डाल दिया बिकॉज हमने 3rd ईयर का निकाला था. तो 3rd ईयर से उसने सारे मूविंग एवरेजेस हमें दे दिए. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट इज आर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसमें क्या करना है. पहले तो हम एक्सपो करके अपना वेरिएबल बना लेते हैं. वी पुट EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लिए फंक्शन. गिव द डेटा का रेफरेंस डेटा 1 इट इज़ एंड इसमें भी n इज इक्वल टू 3 पुट करके वी कैन कैलकुलेट दिस. एक्सपो प्रिंट कर लो एंड यू कैन सी हमारा आ चुका है आंसर. ठीक है. नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज वेटेड मूविंग एवरेज. वेटेड मूविंग एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमारा डेटा तो सेम ही रहेगा, जस्ट हमें वेट्स देने हैं. वेट्स आप ऊपर वाले नहीं ले सकते बिकॉज वो आपने 5 ही दिए थे और हमारा अभी डेटा 10 का है तो हमें 10 वेट्स देने पड़ेंगे. तो वेट्स 1 करके वी कैन क्रिएट अ वेक्टर. गिव कॉन्कैटिनेट का फंक्शन 1 2 3 4 5 6 7 5 3 1. ठीक है. कंट्रोल एंटर. वेट्स 1 बन चुका है. जस्ट क्रिएट अ WMA करके एंड WMA कैप्स में गिव अ फंक्शन डेटा का रेफरेंस n इज इक्वल टू 3 एंड वेट्स इज इक्वल टू वेट्स 1 हम लिख देंगे जो हमारा वेरिएबल है. प्रेस कंट्रोल एंटर. नाउ प्रिंट WMA जो आपका वेरिएबल है एंड यू कैन सी अब हमारा आंसर WMA का निकल चुका है. सो ये हो गया हमारा कंप्लीट. सो इसके साथ हमारा सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है. सो इसमें बेसिक वाले में वी डिड बेसिक मीन मोड मीडियन एंड आर मिसिंग वैल्यूज़. अभी ये सेकेंड पार्ट था सेंट्रल टेंडेंसी का, तो वेयर वी डिड वेटेड एवरेज, वेटेड मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. एंड उसके बाद वी मूव टूवर्ड्स द क्वार्टाइल्स का पोर्शन एंड परसेंटाइल एंड देन वी मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ moving averages where we install the package of this and TTR and we calculated simple exponential and weighted moving average. And with this our video is completed. I hope you enjoyed it and you understood every concept. And
इसमें थोड़े बहुत पैकेजेस हैं दैट वी हैव टू रिमेंबर. 4 to 5 पैकेजेस है. डेटा विजुअलाइजेशन में एक आधा 2 पैकेज और है वेयर यू हैव टू रिमेंबर. बाकी इट्स ईजी, आपको समझ आ रहा होगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ये. तो जस्ट प्रैक्टिस इट ताकि आपको आपका हाथ बैठ जाए एकदम से कॉन्सेप्ट्स पे. एकदम से तो नहीं आएगा बट जस्ट प्रैक्टिस कॉन्स्टेंटली जब तक आपके एग्ज़ाम्स है. 10-15 दिन रह गए हैं मसा ही. तो just practice on that, and I hope you like that video. Comment down if you have any doubts or if you have any queries, and I'll cater to that as well, and share it with your friends ताकि सबका भला हो. Thank you so much.